یہ ان کا پہلا وزٹ تو ہو سکتا ہے لیکن آخری نہیں ہوگا انشاءاللہ. آئندہ بھی وہ یہاں پہ تشریف لاتے رہیں گے اپنے حلقے کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے, اور اس کے علاوہ وہ پارٹی کے وہ جیالے ہیں, وہ جیالہ ازم جو اپنے اندر رکھتے ہیں, ان سے ملاقات اور رابطے کے لیے انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. تو آج کی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں, جس کے لیے حافظ زاہد صاحب سے التماس ہے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دہائی جیالے اور نوجوان ساتھی چودھری الیاس صاحب کی تقریر سے کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب چودھری الیاس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں موضوع مہمان حضرات کی حکموں صاحب کو برسانہ من پر دل کے حاضرین سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو چیئرمین ضلع کونسل اور ضلع ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ سنبھالنے پر بھی دل کے حاضرین سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
یہ پیپلز پارٹی کے بہت پرانے کارکن ہیں. پیپلز پارٹی ایک نظریے کا نام ہے جو آج بھی قائم و دائم ہے. شخصیات تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن نظریات ختم نہیں ہوتے ہیں. میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے کم از کم 15 سے 20 لوگ ہیں وہ محکمہ مال سے وابستہ ہیں. محکمہ مال اور وکلاء اجلاس جو ہے وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزم ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں جب بھی کبھی بھی کسی وکلاء کی یا کسی وکیل کی بات ہوئی ہے تو جناب والا قیوم قمر صاحب کا نام ہمیشہ سب سے پہلے لیا جاتا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی جاتی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ جماعت کے لیے بھی محکمہ امور کے لیے بھی سب کے لیے ترجیح بنیادوں پر کام کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ایسے کارکن ہیں جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے کام کیا ہے. مشکل وقت میں پارٹی کا جھنڈا تھاما ہے اور پارٹی کے کارکنوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں. اسی وجہ سے آج پارٹی نے بھی ان کو ایک بہت بڑی پوسٹ سے نوازا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی کارکنوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کارکن اور لیڈران لازم اور ملزوم ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں جناب قیوم قمر صاحب سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ یہ علاقے کے مسائل جملہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور خاص کر نوجوان جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا احساس جو محرومی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کو اپنی بھرپور تائید اور حمایت کا یقین دلاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو قیوم صاحب کی وجہ سے ہیں لیکن وہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ہر جگہ بھی موجود ہوتے ہیں, انتہائی متحرک ہیں, تو اس لیے ان دو ساتھیوں کا نام لیا. باقی کا بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور خصوصاً تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی جیالے اور سینئر ساتھی قیوم صاحب کے لیے. تو اگلے مقرر ہیں جناب چودھری عابد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب جناب عمر فاروق رانجھا صاحب, صدر پاکستان پیپلز پارٹی اسپین. خصوصی میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کوٹلی کے صدر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل جناب عبدالقیوم قمر صاحب, میزبان جناب چودھری نوید نبی صاحب, چودھری طارق جمال صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھی جناب چودھری محمد لطیف صاحب, چودھری الیاس صاحب, میرے بھائی محترم ماسٹر غلام نبی صاحب. دل تو چاہتا ہے سب کے نام لوں, جناب جاوید گل صاحب, حافظ رزاق صاحب, لیکن چونکہ آپ صاحب میرے خیال میں مہمان خصوصی صاحب کو سننا چاہتے ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں, تو میں آپ کی اور آپ کے مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ دیر عائل نہیں رہوں گا. میں مختصراً پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو آزاد کشمیر میں ہمارے جناب وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب, میرے قائد کشمیر شیر کشمیر جناب چودھری محمد یاسین صاحب, نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک بنیادی کارکن کو, پیپلز پارٹی کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کارکن کو ایک بڑی ذمہ داری سے نوازا اور یہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو بہترین اکوموڈیشن دیتی ہے. میں اس پر اپنی قیادت کا وزیر اعظم صاحب کا اور وزرائے کرام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اور جناب قیوم قمر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعی آپ کی پارٹی کے لیے خدمات قربانیاں تھیں, آپ اس عہدے کے مستحق تھے اور اللہ پاک نے آپ کو یہ عہدہ دیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اور نظریاتی کارکنوں کو ضرور اکوموڈیٹ کرنا, کیونکہ آپ کے پاس وافر فنڈز ہیں, آپ کارکن ہیں اور آپ کے پاس اب اختیار ہے, آپ کی قلم میں جان ہے, تو آپ پارٹی کے جو بنیادی کارکن ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا. میں اسی پر آپ کی اور آپ کے مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا. اجازت چاہوں گا. جیے بھٹو, جیے بے نظیر, جیے کشمیر. یہ علیحدہ بات ہے کہ کرپشن سے بھی دور رہتی ہے. اگر کرپشن کرتے تو پیپلز پارٹی کے کارکن ورکر آج فیکٹریوں کے مالک ہوتے. ہم قیادت کے مشہور ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے کارکن کا, اپنے ورکر کا خیال رکھا ہے. تو میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے سینئر نائب صدر جناب جاوید گل صاحب سے التماس کرتا ہوں چند الفاظ کے لیے. جناب جاوید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب قیوم صاحب, صدر عمر فاروق رانجھا صاحب, حافظ رزاق صاحب, نوید نبی صاحب, طارق جمال صاحب, ملک صاحب,
और तमाम साथियों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आज यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे भाई ने कहा कि एक नज़रियात का नाम है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और हमें इस बात पे जदोजहद करनी है कि हम सब ने मिलकर इसे आगे ले जाना है। पार्टी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सब ने मिलकर इसे को आगे लेकर जाना है और आज वक्त है कि हमें इसके लिए काम करना है। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पार्टी के मर्जी अहदेदारान का मशकूर हूँ जिन्होंने कयूम साहब को ये ओहदा दिया है। उसके लिए ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को भूलती नहीं है, जब ज़रूरत होती है भूलती नहीं है। तो जनाब, हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेन और PYO स्पेन की तरफ से वेलकम करते हैं और आपको अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं और हम आपके साथ हैं। अल्लाह आपके साथ रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह ही दिन रात उसके लिए आप काम करें और हमारा ताउन आपके साथ है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। हम साहब के मेज़बान भी हैं और ऑर्गेनाइज़र भी हैं इस तकरीब के। इसके अलावा लोकल सतह पे हमारी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी और इंतहाई मुतहरक शख्सियत है जनाब नबी साहब आए, तशरीफ लाएँ, मेहमान का खुशामदीद भी कहें और साथियों से चर्चा करवाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम आज के मेहमान जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेन जनाब उमर फारूक रांझा साहब, चौधरी आबद इकबाल साहब, जावेद गिल साहब, मलिक इब्रार साहब, वासिफ नज़ीर साहब, हाफ़िज़ रज़ाक साहब और दीगर तमाम भाई। मैं अगर फर्दन नाम लेना शुरू करूँ तो मैं समझता हूँ क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मुश्तरका तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बिलखुसूस चौधरी अब्दुल क़य्यूम कमर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कोटली, उनकी इस्तकबालिया में रखा गया है। चौधरी साहब, आपने हमको एक तो टाइम बहुत शार्ट दिया, हम इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की है और समझते हैं कि आपको इज्जत देने के लिए आपने और ये जो तमाम दोस्त हमारे यहाँ तशरीफ लाए, जिनको मैंने एक दो दिन के अंदर शॉर्ट नोटिस पे उनसे रब्ता किया और वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमको इज्जत दी। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब को वेलकम करता हूँ यहाँ पर। अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी बरादरी का नाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इसमें गुज्जर बरादरी या जाट बरादरी या राजा या कोई नहीं है, ये तमाम बरादरियों का एक गुलदस्ता है और ये ग्यालों की पार्टी है। मैं वज़ीर आज़म कश्मीर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अब्दुल क़य्यूम कमर साहब जैसे एक वर्कर को, बल्कि राजा साहब मैं इनके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि आबद साहब हो गए, ये हो गए, हम छोटे हुआ करते थे तो हम जब जाया करते थे तो हम उस वक्त देखा करते थे कि ये लोग उस वक्त जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम लगाया करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चैकिंग किया करते थे, वहाँ पे ये पोस्टर लगाया करते थे और हम जब उनका नाम लिखा पढ़ा करते थे कि मैं जनाब आबद इकबाल चौधरी या तो हम पूछा करते थे ये कौन थे, तो उस वक्त मतलब हम बच्चे से ये देख रहे थे। तो आप तो माशाल्लाह हम जवान हो गए, हमने देखा आज तक ये पीपल्स पार्टी के लिए है और पीपल्स पार्टी के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज अब्दुल क़य्यूम कमर साहब अगर एडजस्ट हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये उनका हक था और मतलब इस हमें बहुत खुशी हुई और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी कहना मुनासिब समझूंगा कि पाकिस्तान के अंदर दावे करने वाले कि हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मजीद मसाइल से दो चार किया है। अब आप लोग आगे, आपने आगे क्या किया है? आप लोगों ने कौन सा मुल्क को बचाया? आपने मुल्क को क्या, आप लोगों की हुकूमत के दौरान जब मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर आपको कर्फ्यू लगाना पड़ जाता है तो आप कौन से मुल्क को संभालोगे, क्या करोगे आप? तो असल हुकूमत जो है, असल मुल्क को बचाने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी है कि जिसने स्वात के अंदर ऑपरेशन करके, स्वात के अंदर तालिबान को खत्म करके वहां पे उन लोगों को सुख और चैन का सांस लेना रवैया किया। तो अब आप लोग इस्लामाबाद के अंदर आपके तालिबान घुस चुके हैं, आप किस किस को कंट्रोल करोगे? और क्योंकि मैं मजीद यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी वक्त शार्ट है और बहुत से मेहमान हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोबारा। क़य्यूम कमर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इंशाल्लाह मजीद आप यहाँ तशरीफ लाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफा की
تو پھر کبھی یہ پروگرام ہوتے رہیں گے. اور یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ہے نا, ہماری آنکھ جو ہے پیپلز پارٹی کے پرچم تلے کھلی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے تابوت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پرچم میں اٹھیں گے. بارسلونا میں مقیم تمام پاکستانیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں اس موقع پہ جناب آج کی محفل کے آرگنائزر بھی ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, جناب چودھری طارق جمال صاحب, انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں. جناب طارق جمال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤں کی ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی, فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا, تلوار سے موسم کوئی بدلا نہیں جاتا, طوفان میں ہو نہ ہو صبر بھی آ جائے, چور اپنے ہی گھروں میں نقب نہیں لگاتے, اپنی ہی کمائی کو تو لوٹا نہیں جاتا, اللہ جسے چاہتا ہے ملتی ہے مظفر, عزت کو تو بازار سے خریدا نہیں جاتا. جناب مہمان خصوصی جناب عزت مآب چودھری قیوم قمر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے صدر عمر فاروق رانجھا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر جاوید گل صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری نوید نبی صاحب, اور دیگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام قائدین اور میرے ساتھیوں, السلام علیکم. میں سب سے پہلے جناب مہمان خصوصی چودھری قیوم قمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں آج اس محفل میں جو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا باعث فخر ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. میرے ساتھیوں, پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اس پارٹی کا روح رواں تھا, جس کی یادیں, جس کی باتیں آج بھی ہمارے سینے میں دفن ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک نڈار بے لوث, باکمال, انتہائی ذہین, انتہائی قابل, اور وہ ایسی شخصیت تھی جس کا احاطہ لفظوں میں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا, وہ مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر تھا, جس نے پاکستان کو اتنی بڑی قوت دی جو کہ آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں, چاہے بڑی سے بڑی سپر پاور ہو, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں, تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا. میرے ساتھیوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی جو کہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. آج میں پھر اظہار کرتا ہوں کہ آج چند نام نہاد جوادری جو کہ اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکے, اور 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر میڈیا کے سامنے باتیں کرتے ہیں, اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی صفائے سے مٹ جائے گی. میں آج اس محفل کے اعتبار سے, آج اس اجتماع کے اعتبار سے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جناب محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو زرداری کی پارٹی ہے, اور اس پارٹی میں ہمارے شہیدوں کا لو شامل ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے. میرے ساتھیوں, میں مختصر ٹائم میں اتنا ٹائم نہیں لینا چاہتا. میرے انتہائی قابل احترام جناب قیوم قمر صاحب نے اپنے دور میں ہمیشہ غربا پروری کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے, جو کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. اگر کوئی
काले को सफेद कहता है और सफेद को काला कहता है, तो इसका इलाज हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस महफिल के तौर से, इस इज्तिमा के तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगले पांच साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, और ये बुगड़े, ये लोटे, ये बेज़मीर और ये इब्न अल-वक्त और ये पार्टी की पीठ में छुरा मारने वाले, इनका नामो निशान नहीं होगा मेरे साथियों। आखिर में मैं अपने कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा लगाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप भरपूर तरीके से उसका जवाब देंगे। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं इन्हीं अल्फाज पर खत्म करता हूँ। वस्सलाम। के सदर पीपल्स पार्टी की उमर फारूक रांझा साहब, और आज की इस तकरीर के मेज़बान जनाब मास्टर गुलाम नबी साहब और मेरे भाई जनाब नवीद नबी साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ नुमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी आबिद इकबाल साहब, तारिक जमाल साहब और जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब, सब दोस्तों का मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सबको मैं जानता भी नहीं हूँ। हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब हैं कोऑर्डिनेटर, हाफिज़ साहब मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। जावेद गिल साहब, वासिफ नज़ीर गुजरात साहब जो ये पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, जनाब चौधरी इलियास साहब हैं, चौधरी कमरान साहब हैं, चौधरी मुनीर साहब, और मेरे अजीज़ हैं महफूज साहब, मुख्तार साहब, और इनको तो मैं जानता हूँ, बाकी का मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने, और सबसे बढ़ के मैं अपने भाई नवीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे एजाज़ में ये इस्तकबालिया रखा। मैंने तो इनको कहा था कि आपने सिर्फ आना है, मुझे एयरपोर्ट से ले जाना है, तो मैं इनका ज़ाती तो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस्तकबालिया दिया, और दूसरा आप जैसे लोगों से मिलने का जो है वो मौका मिला। शायद ये मौके ज़िंदगी में बहुत कम इस तरह के मिलते हैं, तो मैं आप सब के बाप का इस मसरूफियत के दौर में इतना वक्त निकाल कर एयरपोर्ट पर जाना, फिर इस तकरीर में शिरकत करना, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, और मैं आपका बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। तो मैं जैसा कि आपने पार्टी के हवाले से हमारी मरकज़ी क़यादत का भी शुक्रिया आपने अदा किया, मैं इस पर भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आबिद साहब जो है वो बेशुमार बातें जानते भी हैं, क्योंकि इनका और हमारा बड़ा करीबी तल्लुक़ है, एक ही गाँव से तल्लुक़ रखते हैं। तो बिलाशुबा ये जो सदर साहब ने बातें की, इनके बाद कोई ऐसी बात नहीं है जो कर सकें। तो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कारकुनों की जमात है, और मैं मुख्तलिफ जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद मुख्तलिफ उधर कोटली में खरीटा में फंक्शन हुए हमारे तकरीबात, ये एक दो तकरीबात में मेरे ख्याल में कमरान साहब भी उधर थे। तो मैंने पार्टी की क़यादत का शुक्रिया तो हमने अदा करना होता है, बिलाशुबा पार्टी की क़यादत की जब तक दस्ती शफ़क़त ना हो तो कोई कारकुन जो है उसको उसका हक़ नहीं मिल सकता। तो मैं आपके तवज्जुह से सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब, सीनियर वज़ीर चौधरी यासीन साहब, वज़ीर तालीम मतलूब इनकलाबी साहब और रियाज़ कानपुर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ। और मैं नाब साहब जानते हैं कि हम बिल्कुल एक मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं, ज़माना तालिब इल्मी से लेके हम पीपल्स पार्टी और PSF से वाबस्ता रहे हैं। और मैंने जो बात कह रहा था कि खरीटा मैंने फंक्शन में तकरीब में वहाँ पर मैंने जो है वहाँ पर दोस्तों से ये बात शेयर की कि मैं जो ये ज़िला कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर बना हूँ, मैं कोई उम्मीदवार नहीं था, ना मैं किसी सरकारी ओहदे का,
उम्मीदवार था, लेकिन पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी। मैं इससे पहले भी पार्टी के मुख्तलिफ अहदों पर काम किया। मैंने जनरल सेक्रेटरी रहा पीपल्स पार्टी का मैनचेस्टर का, उसके बाद मोहतरमा शेख ने मुझे सदर बनाया पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का। माशाल्लाह हमने पार्टी चलाई भी और अच्छे तरीके से चलाई। आबू साहब जो हमारे साथ रहे हैं, ये बड़े मुतहर्रिक कारकुन थे, उधर यहाँ भी मुतहर्रिक हैं। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की पार्टी पर किसी बात को हमने कभी तरजीह नहीं दी। और आज मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज ज़िला कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर 5 जो MLA हैं वो मुझसे शेयर करेंगे। तो ये पार्टी में रहने का और पार्टी से कमिटमेंट का जो है वो रिटर्न जब मिलता है तो एक कारकुन को जो है उसको हौसला होती है। और पार्टी जो है ना वो आप साहब से मेरी बात नहीं हो सकी। मैं जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, मुझे चौधरी रियाज साहब जो हैं इंचार्ज जरदारी उसके, उन्होंने मुझे बुलाया इस्लामाबाद में। मैं उनके घर गया, उन्होंने कहा कि पार्टी ने आपके डिसीजन किया कि आपने एडवाइज़र बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने उनको कहा कि एडवाइज़र तो मैं नहीं बनूँगा, क्योंकि आगे वज़ीर हैं हमारे घर के सारे, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनाते हैं तो ठीक है, मैं अगर पार्टी ने डिसीजन किया तो मैं काम करता हूँ। तो अगर नहीं बनाते तब भी मैं पार्टी के साथ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने ये कहा और मैंने कहा अगर आप नहीं भी बनाते तो आज मैं समझता हूँ कि मैं बन गया हूँ। एक कारकुन को बुला के जो है उसको ऑन बोर्ड करना ये बड़ी बात होती है। तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल मुतवस्त तबके से तलक रखते हैं, तो हमारी जो शनाख्त वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इस शनाख्त की वजह से हमें दर्शबा इज़्ज़त भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह के फैसले होंगे तो पार्टी के अंदर जो है वो पार्टी मजबूत होगी। और मेरी जब ये आब साहब अनाउंस हुआ तो पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में बैरून मुल्क, जैसा कि आज मैं कोई जो है ना मुझे तो नहीं पता था ये फंक्शन होगा, मैंने वैसे आना था पहले से, मैं 2-3 महीने से तैयारी कर रहा था लेकिन मैं आ नहीं सका। तो मैंने कहा कि ये लतीफ़ साहब मेरे भाई हैं इधर, ये और नवीद साहब महफूज साहब तीनों आ जाना, मुझे ले जाना एयरपोर्ट से। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी तकरीब और बेशुमार उधर भी तकरीबात हुई हैं जिनका मैं सोच नहीं सकता था। और मैंने जो यासीन साहब और मतू साहब को उन्होंने कहा कि आप ये जो मुजफ्फराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर और एक हमारे भाई जो है वो मशीर बने राजा मुबशर एजाज, तो वो कहते हैं हमारी एक खबर लगी है एक सिर्फ, हमें तो किसी ने मुबारक भी नहीं दी। और ये आपने कैसा एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जो कि बड़ी बड़ी अखबारों में 50-50 हज़ार के लाख रुपए के इश्तहार भी आए हैं, फंक्शन भी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पार्टी की वजह से और आप जैसे दोस्तों और भाइयों की आज जो है ना बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। और मैं जो यासीन साहब से और मतूस साहब से मैंने कहा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनने की भी खुशी है कि एक कारकुन को जब कोई सरकारी अहदा मिलता तो बिलाशुबा खुशी होती है। और मैं इससे बढ़ के मैं इतना खुश इस बात हूँ कि मुझे पूरे जो पार्टी के आपने ने अप्रिशिएट किया मुझे, और पार्टी से हट के दूसरी जमातों के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और ये जो है ना बड़े एजाज़ की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस पार्टी के साथ कमिटमेंट निभाने एक हिम्मत अता करे, और जो जिम्मेदारी दी है, जैसे आबू साहब ने कहा कि फंड्स बहुत होते हैं तो औकात बहुत होती हैं लोगों की, और वसाइल हैं जो वो नहीं है, वसाइल ज़्यादा हैं वसाइल कम हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे तरीके से निभाएं। और मैं एक बार फिर जो है नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका फराहम किया। और मास्टर गुलाम नबी साहब, तारक जमाल साहब का, आबद साहब का, सच्ची बात है ये वहाँ जाते हैं तो हम कभी चाय भी नहीं पिला सकते, बस नफसा नफसी के दौर में कभी इधर कभी उधर। आबद साहब को मैंने 3 दफ़ा कहा मेरे का घर खाना खाना, लेकिन नहीं जो है वो हम इकट्ठे नहीं हो सकती। जिस दिन ये इसी मैं तो यहाँ पे जो स्पेन में इतने लोग उनका इकट्ठा करना
मैं समझता हूँ कि ये खलूस से कम नहीं है, ये जिस बंदे के अंदर खलूस है वही कर सकता है। तो अल्लाह ताला आपको इस स्पेन दियार गैर तो नहीं है जिस जगह रहते हैं, ये स्पेन आपका हमारा डर है, मतलब जहाँ पर आपने पूरी ज़िंदगी रोज़ी और कारोबार किया, रोज़ी कमाई, तो इसको कायम रखे, आपको कायम दायम रखे, आपकी सेहतें ठीक हों और आपकी रिज़्क़ में बरकत अल्लाह ताला दे। और मैंने सफ़र किया, काफ़ी तकरीरें जो है बड़ी बड़ी करते हैं हम, जो है ना वो बड़ी तकरीर भी कर सकते हैं, जो जुलाई के जलसे में मैंने किया उधर तकरीर आपने शायद सुनी नहीं। तो आज आपसे जो है ना ये चंद बातें करनी थी। तो मैं सब आपका दोस्तों का पार्टी के, और बड़ी खुशी की बात है कि ये पार्टी के झंडे, और मैं जो है ना ये यौम तासीस का प्रोग्राम था ये 30 तारीख को, तो हमने उधर फंक्शन करवाया जिला कौंसिल में, शायद साहब ने इंटरव्यू किया उधर, वो आदि कर रहे थे, मुतलू साहब ने कहा आप छोड़ दें, उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दें, मुझे टाइम दे दें। तो वहाँ पे मैं जो है ना वो काफ़ी लड़कों की मैंने ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये बैनर और झंडे लगाने हैं, ठीक है। तो मैं खुद गया हूँ, फिर मैंने जाके खुद लगाया झंडे, क्योंकि ये आदत है। ये नहीं चाहता तो झंडे वगैरह लगा देता हूँ, मैं ज़मीन मेरा मलाम कर रहा था, मैं खुद जाके से झंडे ठीक नहीं लगे तो मैंने खुद लगाया जाके। तो ये पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी है, और इस पार्टी की कारकुनों से बढ़कर लीडरशिप ने कुर्बानी दी है। भुट्टो शरीफ की कुर्बानी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, पूरा ख़ानदान है जो सियासत की नज़र हो गया। और दुनिया की तारीख़ में, सियासत की तारीख़ में कोई भुट्टो ख़ानदान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है जो भुट्टो ख़ानदान से सियासत के मैदान में मुकाबला कर सकता हो, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो हम आज हमारी जो सियासत है वो इन कुर्बानियों की वजह से, तो इंशाल्लाह आप स्पेन के अंदर सदर साहब आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, इनकी क़यादत में यहाँ पर पीपल्स पार्टी को मुतहिद करें। माशाल्लाह पहले ही आप बहुत मुतहिद हैं, इसको मज़ीद मजबूत करें। ये पार्टी हमारी शनाख्त है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान में भी मजबूत है, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी एक क़ुव्वत है। और पीपल्स पार्टी को किसी वक्त जो हरा दिया जाता है, ये वहाँ पर जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बेशुमार हाथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लंबी बात है वो। तो मैं आप सब का एक दफ़ा, आप साहब आपका, नबी साहब, चौधरी साहब आपका, रमज़ान है नाम आपका, तारक साहब, सारी जावेद साहब का, तारक जमाल साहब का, आप सब का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो मेरे इज़ाद में जो तकलीफ बना नबी साहब ने और नबी साहब ने किया, आप आए अपना काम छोड़ के। तो यार जिंदा सब बातें इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। जिए भुट्टो जी, आप सब कुछ दरख्त बड़े हैं हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े। मैं क्यूम कमर साहब को पैन आमद पे खुशआमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 8 घंटे मुसलसल बल्कि 12 घंटे मुसलसल सफ़र करने के बावजूद इस तकरीब में आए और सारे साथियों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद एक बात की है रांझा साहब ने, तो मुझे उस पर कुछ आ गई है। जिस तरह रांझा साहब अपनी तकरीर जो है ना वो अपनी ज़ुबान में कर सकते, इस तरह मैं भी अपनी तकरीर जो है ना अपनी ज़ुबान में करूँगा। मैं तो पहले स्टेज पे आता नहीं हूँ कि ये जानते हैं कि ये कह रहे हैं वो जियाला, तो जाहिर है एक बेटा अगर जियाला तो बाप उसके बढ़ से उसका जियाला होगा। मैंने कभी पहले बात नहीं की है। आज भी बैठे हुए आबद साहब, क्यूम कमर साहब और मैं ये भी रेजिडेंट साहब बैठे हैं, लेकिन बात करूंगा कि इस पार्टी के लिए जितनी कुर्बानियां हमने, मेरे खानदान ने दी हैं, इतनी बहुत कम वहां दी हैं, ये जानते हैं। ये इसकी एक मिसाल, 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। एक बार मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मैं टीचर था वहां, तो मेरा तबादला करके वो ऑर्डर जो है ना मुझे एम्बुलेंस में दिया कि आपका वहां से ट्रांसफर कर दी गई है। इससे बड़ी कौन सी जो है ना वो नाइंसाफी हो सकती है? इससे बड़ा और कौन सा जो हो सकता है? दूसरी बात, जब मेरे वालिद फौत हुए तो मेरे भाई को सर्विस से फारिग करके ऑर्डर कर दिया गया कि आपको सर्विस से फारिग कर दिया गया।
किस वजह से पार्टी को वोट देने के लिए, जहां हम रहते थे वहां पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा था। तो उस वजह से हमने वो जो कुछ भी है वो कुर्बान किया, लेकिन पार्टी की खातिर आज तक जिस तरह मेरे बेटे ने कहा है कि हमारी आंखें पार्टी के झंडे के नीचे खुली हैं और हमारा ताबूत भी इस झंडे के बीच जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं राजा साहब ने एक बात की थी तो मैं भी कर रहा हूं कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये जो इलेक्शन थे पाकिस्तान के हुए, उसके बाद आजाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे, तो यहाँ कोई आजाद कश्मीर के पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था, किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने अखबार में कुछ बयान नहीं दिया। दूसरी साइड से बयान अखबारात में आ रहे थे, तो उसके तोड़ के जवाब, उस बयान के जवाब देने के लिए मैं अखबार में जो है ना बयान देने के लिए गया। तो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती थी, इसी तरह हम भी पार्टी के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन किसी दोस्त ने किसी हवाले से राजा साहब से तारफ करवाया नवीद साहब का, तो इन्होंने इसकी नवीद की तरबियत की, बहुत अच्छी की, और हम इन सब पार्टी वालों का जो क़यादत है इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अच्छे तरीके से जो है ना रिलेट किया और इंशाल्लाह वो मुकाम दिया जो हम उसके मुस्तहिक नहीं। पार्टी का एक कारकुन होना बड़ी बात है, पार्टी का कोई बड़ा ओहदा होना कोई बात नहीं है, पार्टी का एक कारकुन होना भी बड़ा बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के इनमें जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी के मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब यहाँ ऑर्गेनाइजर हो रही थी, ऑर्गेनाइज के लिए POI के लिए यहाँ हो रही थी, तो राना साहब पहले थे यहाँ आए हैं अगर बड़ानी साहब, तो राना साहब ने कहा कि मुझे 2 आदमी जो है ना वो चाहिए तंजीम के, बाकी जो आप तंजीम बनाए। तो उसमें नवीद का भी नाम था। फिर आबद साहब ने भी जो है ना बहुत ज्यादा इस सिलसिले में जो है ना हमारी इकराम इंसाफ पे शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने जो लेकिन काम किया था तो वो इसलिए इन्होंने जो है ये किया। तो उनका इसी हाल में एक दिन जो है ना तकरीब हो रही थी, मेरा ख्याल है कि वो चेयरमैन थे, क्या नाम था, अमजद टाडा साहब, तो उन्होंने कहा था कि ये पीपल पार्टी की एक रवायत है या पीपल पार्टी की पहचान है कि आज वजीर आज़म जो है वो राजा परवेज अशरफ हैं, ये काम वर्कर थे। तो हमारे आजाद कश्मीर में भी जो वजीर आज़म है वो भी एक आम वर्कर है। बल्कि मैं ये आप लोग उनको ताने दे रहे हैं कि आप जो है ना इतने बड़े किसी बड़े घराने से तल्लक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े घराने से तल्लक नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल गया था तो मेरी पाँव में जूती नहीं थी। तो आज वो वजीर आज़म है, किस वजह से है कि वो पार्टी की वजह से है। ये पीपल पार्टी की शान है कि आपने वर्कों को जो है ना नवाज दिया। उसी तरह ये पीयूष कमर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ इनको एडमिनिस्ट्रेटर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शहीद बीबी ने अपनी कलम से इनको जो है ना प्रेसिडेंट बनाया था जिले का, तो वो बड़ी बात है। और उस के विजन की उनकी जो तोक़त थी या जिस तरह उन्होंने कारकुनों के लिए आपको जो है ना जिम्मेदारियां सौंपी हैं, हम तवक्को करते हैं कि उसी तरीके से आप जो है उन कारकुनों की जो है वो हौसला अफजाई करेंगे, उनके जो है ना मुश्किल वक्त में काम आएंगे। और मैंने भी देखा, और भी बहुत आते हैं लोग इधर, बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है इनको दफ्तर में बैठे हुए बहुत से आदमी आए, जैसे आम आदमी आता है किसी और ऑफिस में नहीं जाता कि मुझे हो सकता है घुसने नहीं देगा, लेकिन क्यों कमर साहब के ऑफिस में आप जाएंगे तो मुस्तफा के लोग, गरीब लोग वो बैठे हुए होंगे कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। ये आबद साहब गवाह है, ये फोन नहीं करते, खुद उस कारकुन के साथ, उस वर्कर के साथ जाते हैं जो है ना उनके मसाइल हल करने के लिए। हमें यही खुशी है और हम यही तो करते हैं। आप जिस तरह पहले कारकुनों की खिदमत कर रहे थे, इसी तरह अभी भी आप अपनी जो है वो खिदमत जारी और सारी रखती है। उसके बाद मैं तमाम जो मेहमान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस फंक्शन में आए, इस तकरीब को रौनक बख्शी। और बिलखुसूस ये आज़ाद कश्मीर वाले, ये जो घर वाले, ये हमारा तो कोई किसी पे आसान नहीं है, चलो हमारे भाई हैं, हम आए, लेकिन हम बिलखुसूस ये मरकजी जो क़यादत है इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनने बहुत कीमती वक्त इंतहाई जो है ना, हर आदमी के बहुत अपने अपने मसाइल हैं। मेरा एक काम है, मैं एक काम नहीं कर सकता हूँ, तो इनके 4-4, 5-5 काम है, वो रोज बंद करके जो है ना वो अपने जो है ना वो इस तकरीब में आए हैं और उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारी जो है ना हौसला अफजाई की है, हमारे मेहमानों की बख्शी है। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह
उम्मीद रखते हैं कि इंदा भी इसी तरह ये फंक्शन इस जमात के होते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम इसी तरह भरपूर अपनी शिरकत करते रहेंगे।